اس کی کمر رفیق کی طرف تھی جو کہ اس کے بڑے بڑے بالوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رفیق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رفیق نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، کون ہے وہاں؟ یہ سنتے ہی اچانک اس عورت کا چہرہ گھوم کر رفیق کی طرف ہو گیا، جبکہ اس کے درد کا رخ ابھی بھی باہر کی طرف۔ بہت پرانی گجرانوالہ کے ایک کچے علاقے کی بات ہے جو کہ کھوتا پلی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں رفیق عرف پھیکا پہلوان نامی ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ کھانے پکانے کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور اپنے گھر سے دور ایک ریسٹورنٹ چلایا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں ٹوٹل 5 افراد تھے۔ رفیق، اس کی بیوی ممتاز اور اس کے 3 بچے تھے، جس میں خالد جو کہ 26 سال کا تھا، طارق 22 سال اور ایک 20 سالہ بیٹی سونیا تھی۔ خالد جو کہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا، اسی وجہ سے وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، جبکہ طارق کم پڑھنے کی وجہ سے کسی کارخانے میں جوتیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ ایسے ہی سونیا بھی مڈل پاس تھی اور وہ گھر میں ہی ممتاز کے ساتھ کسی فیکٹری سے سامان لا کر اس کی پیکنگ کیا کرتی تھی۔ اس طرح پورے گھر والے ہی بڑی محنت سے گھر کا سسٹم چلا رہے تھے، لیکن گھر کی حالت تھوڑی عجیب تھی۔ یوں تو رفیق کا گھر کافی وسیع تر تھا، لیکن کچا پکا تھا۔ اس گھر میں تقریباً سب کے الگ الگ روم تھے۔ ایک میدان کی طرح بہت بڑا کچا صحن تھا جس میں 5-6 پرانے درخت اور ایک ہاتھ سے گرنے والا نلکا لگا ہوا تھا جو کہ مین گیٹ کے کچھ ہی دوری پر تھا۔ وہاں پر 2 باتھ روم بھی بنے ہوئے تھے، اس لیے رفیق اور اس کے گھر والوں کو باتھ روم جانے اور پانی لانے کے لیے مین گیٹ کے پاس جانا پڑتا تھا۔ تو ایک رات رفیق اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تو خالد نے رفیق سے کہا، ابو میرے خیال سے اب ہمیں گھر کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔ دیکھو نا، اتنا بڑا گھر ہے لیکن عجیب طریقے سے بنا ہوا ہے۔ ہمارے کمرے تو یہاں ہیں لیکن باتھ روم 100 گز کی دوری پر بنے ہوئے ہیں اور ان میں بھی کسی وقت پانی نہیں ہوتا، تو ایسے میں بہت مشکل ہوتی ہے، اور اگر مین گیٹ پر گھنٹی نہ لگی ہو تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ یہ سن کر ممتاز نے بھی رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی خالد کے ابو، اب تو مجھے بھی بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہاں سے پانی کی بالٹیاں اٹھا کر یہاں لانے میں بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ عمر ڈلنے کے ساتھ میری ہمت اور طاقت بھی جواب دے رہی ہے۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، دیکھو تم لوگ جو بھی کہہ رہے ہو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اتنی جلدی یہ سب کام نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں بہت پیسے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کمروں کے پکے لینٹر ڈلوانے ہوں گے، کیونکہ اکثر بارش میں چھتوں سے پانی گرتا ہے۔ باقی پانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ میں کل ہی کسی پلمبر سے بات کرتا ہوں، وہ ہمیں پانی کی موٹر اور ٹینکی لگا دے گا اور کچن کے پاس پانی کا ایک اور کنیکشن لگا دے گا، تاکہ تم لوگوں کو پانی کے لیے گیٹ کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پانی کی ٹینکی باتھ رومز کے اوپر بھی لگا دے گا، تاکہ باتھ رومز میں بھی پانی کا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کام میں بھی کافی پیسے لگ جائیں گے۔ یہ سن کر خالد نے کہا، جی ابو یہ ٹھیک ہے، کم از کم ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ اس دوران طارق جو کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہا تھا، اس نے کہا، ابو کیا ہم یہ صحن والی جگہ کسی کو بیچ نہیں سکتے؟ میرا مطلب ہے جو کوئی اسے خریدے گا وہ خود ہی یہاں کوئی 4 دیواری کروا کر اسے فیکٹری یا کارخانہ بنا لے گا۔ ویسے میرے باس بھی کارخانے کے لیے کوئی ایسی ہی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں ان سے بات کروں گا۔ اس طرح ہمیں جو پیسے ملیں گے ہم اس سے اچھا سا 2 منزلہ گھر بنا لیں گے، پھر بھی بہت جگہ بچ جائے گی۔ یہ سنتے ہی رفیق نے چونک کر طارق کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، مشورہ تو اچھا ہے برخوردار، لیکن یہ جگہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے، اس لیے میرا اس جگہ کو بیچنے کا
दिल नहीं करता, वरना ये काम मैं तब ही कर देता जब तुम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और मुझे रेस्टोरेंट बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उस वक़्त तुम्हारी अम्मी ने अपना जेवर बेच दिया, लेकिन मुझे इस जगह को बेचने से बचा लिया। लेकिन देखो, आज तुम मुझे फिर से इस जगह को बेचने का मशवरा दे रहे हो। ये सुनकर तारक ने कहा, मुझे माफ़ कर दें अब्बू, मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में सोनिया ने कहा, अब्बू लेकिन देखा जाए तो तारक भाई ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी हम लोग तो इन कमरों के आसपास ही रहते हैं। ऐसे में अगर वो फालतू जगह आप बेच भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी भाई कौन सा आपको पूरा घर बेचने को कह रहा है। ये सुनकर रफ़ीक सोनिया की तरफ हैरत अंगेज़ नज़रों से देखते हुए बोला, तो इसका मतलब इस घर की जगह को बेचने के हक़ में 2 वोटर हैं। ये कहने के बाद रफ़ीक ने खालिद की तरफ देखते हुए कहा, और तुम क्या कहते हो खालिद? ये सुनकर खालिद ने नज़रें झुकाते हुए कहा, अब्बू ये तो मैंने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन आपको बुरा न लगे इस वजह से आपको नहीं कहता था। ये सुनते ही रफ़ीक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम सब की राय एक ही है। इतने में मुमताज़ ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, देखिए इन सब की राय एक हो सकती है, लेकिन मेरी राय हमेशा आपके साथ है। ये बच्चे हैं, नादान हैं, इसलिए इन्हें पता नहीं कि बाप दादा की निशानी की क्या हैसियत होती है। ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कहते हुए मुमताज़ ने सारे बच्चों की तरफ अफसुर्दा सा मुंह बनाकर देखा, फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, आप इनकी बातों को दरगुजर कर दें और जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसा ही करें। मुमताज़ की बात सुनकर रफ़ीक ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। फिर मुमताज़ रफ़ीक के पास गई तो रफ़ीक किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। यह देखकर मुमताज़ ने कहा, क्या हुआ? आप अभी भी बच्चों की बातों के बारे में सोच रहे हैं? इस दौरान रफ़ीक ने ना तो मुमताज़ की तरफ देखा और ना ही इसकी बातों का कोई जवाब दिया। ऐसा लगता था कि जैसे रफ़ीक को मुमताज़ की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ था। यह देखकर मुमताज़ ने आगे बढ़कर रफ़ीक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, खालिद के अब्बू। ये सुनते ही रफ़ीक एकदम चौंकते हुए मुमताज़ की तरफ देखकर बोला, हाँ क्या हुआ? उस दौरान रफ़ीक अचानक पसीने से भीग रहा था। ये देखकर मुमताज़ ने कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सोच रहे थे? ये सुनकर रफ़ीक ने हैरत से अपने आसपास देखकर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुमताज़ ने हैरत से रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, अजीब लग रहा है? पर क्या? रफ़ीक ने कहा, दरअसल मैं उस जगह को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बच्चे सही कह रहे हैं, हमें इस घर के आधे हिस्से को बेच देना चाहिए। ये सुनते ही मुमताज़ ने कहा, आप घर की आधी जगह को बेचने का सोच रहे हैं? रफ़ीक ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो भी इस जगह को ख़रीदेगा वो सबसे पहले वहाँ लगे इन दरख्तों को काट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मुमताज़ ने हैरत अंगेज़ नज़रों से रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा नहीं होगा? लेकिन क्यों? आखिर क्या मसला है? ये बात आपने पहले भी बहुत बार की है, लेकिन आप ठीक से बताते नहीं हैं। हर बार बात को गोल कर देते हैं, लेकिन आज आपको बताना ही होगा। आखिर क्यों आपको लगता है कि इन दरख्तों में कोई राज छुपा है? रफ़ीक ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे वालिद मरहूम ने मरने से पहले कहा था कि इन दरख्तों से दूर ही रहना, और कुछ भी हो जाए इन्हें कभी काटने की कोशिश मत करना।
बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। ये सुनकर मुमताज़ बीबी ने कहा, लेकिन हम तो रोज़ाना इनके आसपास से ही गुज़रते रहते हैं, हमें तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। रफ़ीक ने कहा, वो तो मैं भी इनके पास से ही गुज़रता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनके पास से गुज़रते हुए अजीब सी वहशत होती है, खासकर उस कोने वाली बेरी के दरख्त से। क्योंकि एक रात जब मैं बाथरूम के लिए जा रहा था तो अचानक मुझे कोई बहुत ही डरावनी सी चीज़ उस बेरी के दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठी हुई नज़र आई, जो कि काफ़ी बड़ी और अजीब किस्म की थी। हालांकि उसने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे देखकर मैं बहुत डर गया और मैं भागकर अपने कमरे में चला गया था। ये सुनते ही मुमताज़ ने हैरत से रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, ये कब की बात है? रफ़ीक ने कहा, तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है, लेकिन ऐसी ही अजीब चीज़ें मैंने बहुत पहले और बहुत बार इन दरख्तों के आसपास देखी हैं। मुमताज़ ने कहा, तो फिर आपने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? रफ़ीक ने कहा, मैं क्या बताता, मुझे लगा था कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो ऐसे ही तुम लोगों को बताकर परेशान क्यों करूं? बस इसीलिए मैं इस बात को गौर कर देता था। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, इसका मतलब कि हमें भी इन दरख्तों के पास जाने से एहतियात बरतनी चाहिए। रफ़ीक ने कहा, हाँ, लेकिन फ़िलहाल ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान एक राज ही रहे, वरना बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। मुमताज़ ने कहा, तो फिर अब आप क्या करेंगे? रफ़ीक ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में किसी आमल या पीर बाबा से बात करनी होगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इस घर को संवारना ही है। इसलिए अब कुछ तो करना होगा, लेकिन पहले प्लम्बर को लाकर पानी वाला मसला हल करना होगा, फिर किसी अमल से बात कर लूँगा। ये कहकर रफ़ीक अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मुमताज़ भी घर के बाकी काम निपटा कर सो गई। रात के करीब 2:30 बजे का वक़्त था कि अचानक रफ़ीक की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर गया। सहन में चलता हुआ मेन गेट की तरफ जाने लगा। अभी रफ़ीक बाथरूम से कुछ ही दूर था कि अचानक रफ़ीक को मेन गेट के ऊपर कोई औरत नज़र आई, जो कि गेट पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। इस दौरान इसकी कमर रफ़ीक की तरफ थी, जो कि उसके बड़े बड़े बालों से ढकी हुई थी। उसे देखते ही रफ़ीक के रोंगटे खड़े हो गए। रफ़ीक ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, कौन है वहाँ? ये सुनते ही अचानक उस औरत का चेहरा घूमकर रफ़ीक की तरफ हो गया, जबकि उसके दर्द का रुख अभी भी बाहर की तरफ ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा उसकी कमर पर लगा हुआ है। ये देखते ही रफ़ीक और ज़्यादा डर गया और उसे देखते हुए आस्ता आस्ता से वहाँ से पीछे हटने लगा, लेकिन उस दौरान वो औरत वहीं बैठी रफ़ीक की तरफ देख रही थी। जब रफ़ीक उससे 40-50 कदम दूर हट गया तो अचानक वो औरत किसी जानवर की तरह तेज़ी से दीवार पर भागती हुई दरख्तों के पास गई और फिर झट से किसी बंदर की तरह छलांग लगाकर दरख्त पर चढ़ी और कहीं गायब हो गई। ये देखकर रफ़ीक बुरी तरह से डरता हुआ वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागने लगा कि अचानक भागते हुए रफ़ीक की टक्कर खालिद से हो गई, जो कि बाथरूम की तरफ आ रहा था। खालिद से टकराते ही रफ़ीक ज़मीन पर गिर गया और ये देखते ही खालिद ने जल्दी से आगे बढ़कर रफ़ीक को उठाते हुए कहा, अब्बू क्या हुआ? अब्बू? रफ़ीक ने खालिद की तरफ देखते हुए कहा, वो वहाँ। ये कहते हुए रफ़ीक बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथ से मेन गेट की तरफ इशारा किया
तो खालिद ने हैरानी से गेट की तरफ देखते हुए कहा, जी अब्बू, क्या है वहाँ? रफ़ीक ने कहा, नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाना, चलो अंदर अंदर चलो। ये कहते हुए रफ़ीक ने खालिद का हाथ पकड़ा तो खालिद ने हैरानी से कहा, अरे अब्बू रुकिए, तो क्या हो गया है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? क्या था वहाँ, बताइए तो। ये कहते हुए खालिद ने अपना हाथ रफ़ीक के हाथ से छुड़ाया और रफ़ीक की तरफ गौर से देखने लगा। तो रफ़ीक ने डरे हुए अंदाज में कहा, बेटा वहाँ गेट के पास कोई खौफनाक सी औरत है। ये सुनकर खालिद ने कहा, डरावनी सी औरत? रफ़ीक ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया। तो खालिद ने कहा, आप यहीं रुकें, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ मत जाओ, वो बहुत खतरनाक और भयानक है, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। खालिद ने कहा, अबू मुझे कुछ नहीं होगा, आप रुकें, मैं अभी देखता हूँ। ये कहते हुए खालिद जल्दी से गेट की तरफ गया और वहाँ जाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन खालिद को वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो खालिद ने वहीं खड़े रहकर रफ़ीक से कहा, अबू यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर रफ़ीक आस्ता आस्ता से दरख्तों की तरफ देखता हुआ खालिद के पास पहुंचा और इधर उधर देखने के बाद एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा वो उस दरख्त की तरफ भागी थी, फिर किसी जानवर की तरह उस दरख्त पर चढ़ गई थी। ये सुनकर खालिद उस दरख्त के पास गया और दरख्त की शाखों को गौर से देखने लगा। फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, अबू दरख्त पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है आपको कोई शायद वहम हुआ होगा। रफ़ीक ने कहा, नहीं बेटा, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने उस दरख्त पर चढ़ते हुए देखा था, और ये आज की बात नहीं, बल्कि ऐसा मेरे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन इस बारे में कभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज मैं बहुत डर गया था और इसलिए तुम्हें बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ, ये वहम नहीं हकीकत है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर खालिद ने एक बार फिर से दरख्त की शाखों पर देखा और बोला, अब्बू फिलहाल तो ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे भी सहन बड़ा है और लाइटें कम हैं, ऐसे में दरख्तों पर क्या दिखाई देगा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, छोड़ो उसे और चलो जल्दी से कमरे में चलो। ये कहते हुए रफ़ीक ने खालिद का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही खालिद ने कहा, वैसे अब्बू क्या वाकया में आपको ऐसी चीज़ हमारे घर में नज़र आती हैं? रफ़ीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम इस बारे में किसी से कोई बात मत करना, वरना ऐसे ही सब डर जाएंगे। अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। खालिद ने कहा, जी ठीक है अब्बू। फिर खालिद अपने कमरे में चला गया और रफ़ीक रात देर तक जाग कर उस औरत के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक सो गया। अगले दिन रफ़ीक हस्बे मामूल अपने रेस्टोरेंट गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इतने में बब्बी नामी एक ट्रक ड्राइवर रफ़ीक के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने आया, जो कि रफ़ीक का दोस्त था और अक्सर रफ़ीक के रेस्टोरेंट में आया जाया करता था। तो रफ़ीक ने उससे गपशप लगाने के दौरान उसे कल रात अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में बताया। तो वो सब सुनकर बब्बी हैरान और परेशान हो गया। फिर अपने सर को पकड़कर कुछ सोचने लगा और फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, अरे फीका भाई, तुम टेंशन ना लो, मैं किसी अमल को जानता हूँ, वो इस बारे में तुम्हारी मदद करेगा। आज दोपहर को ही मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आ जाऊँगा। वो सारा हिसाब लगाकर बता देगा कि तुम्हारे घर में क्या है और इसका हल क्या है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बब्बी भाई। इसके बाद बब्बी ने नाश्ता वगैरह किया और चला गया। फिर दोपहर का वक़्त हुआ तो रफ़ीक एक पानी की मोटर और कुछ पाइप और सेंट्री का सामान वगैरह लेकर
एक प्लम्बर के हमरा अपने घर आया और उससे सेंट्री का काम करवाने लगा। अभी प्लम्बर बाथरूम का कुछ काम कर रहा था कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। तो रफ़ीक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो बब्बी एक अजीब से शख्स के साथ रफ़ीक के दरवाजे पर खड़ा था। रफ़ीक ने बब्बी से सलाम दुआ की और उसके साथ आए उस अजीब से शख्स को गौर से देखने लगा। उस शख्स ने अपने हाथों में बहुत सारी तरह तरह की अंगूठियां पहनी हुई थी और उसका हुलिया किसी मदारी की तरह दिखाई दे रहा था। अभी रफ़ीक उस शख्स की तरफ देख ही रहा था कि इतने में बब्बी ने रफ़ीक से कहा, फीका पहलवान, ये शाकर बाबा हैं, ये बहुत बड़े आमल हैं, ये तुम्हारे घर का हिसाब लगाने के लिए आए हैं। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, आएँ, अंदर आएँ, आ जाएं। ये कहते हुए रफ़ीक बब्बी और शाकर को घर के अंदर ले आया। फिर शाकर ने पूरे घर का जायज़ा लिया। इस दौरान हर जगह को सूंघ सूंघ कर कुछ पढ़ रहा था और ऐसे करते हुए वो उन दरख्तों की तरफ गया तो अचानक वहाँ से फ़ौरन पीछे हट गया और रफ़ीक की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसे ऐसा करते देखकर रफ़ीक ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? शाकर ने पुरइसरार अंदाज में कहा, तेरे घर में असेब है जो कि बहुत पुराना है। ये सुनते ही रफ़ीक ने हैरानी से कहा, क्या? शाकर ने कहा, इस घर में बहुत ही खतरनाक चीज़ें बसेरा पजीर हैं जो कि अभी तो बहुत खामोश और धीमे धीमे मजाज में हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकती। वो दिन ब दिन वसीली होती जाएंगी क्योंकि ऐसा लगता है इनको अब तक किसी इल्म की ताकत से रोका गया है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इल्म का असर ख़त्म हो रहा है। क्या तुम लोगों ने पहले भी किसी अमल से अमल करवाया है? यह सुनकर रफ़ीक ने हैरानी से शाकर की तरफ देखते हुए कहा, अमल? नहीं, हमने तो किसी से कोई अमल नहीं करवाया। हाँ, लेकिन मेरे वालिद मरहूम के एक दोस्त इल्म दीन साहब थे जो कि पीरी फ़कीरी जानते थे। हो सकता है मेरे वालिद ने उनसे कोई अमल वगैरह करवाया हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा पता नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन मेरी फूफो जान इस बारे में कुछ कुछ जानती होंगी क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे घर में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसी सिलसिले में इल्म दीन साहब इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन वो फैसलाबाद में रहती हैं और बहुत ज़ईफ़ हैं। शाकर ने कहा, जो भी है, लेकिन अब इस इल्म की ताकत ख़त्म हो रही है और ये चीज़ें कुछ ही दिनों में इस इल्म पर हावी हो जाएंगी। ये सुनकर रफ़ीक और बब्बी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में रफ़ीक ने कहा, बाबा, तो इसका हल क्या है? ये सुनते ही शाकर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, इसका हल सिर्फ मेरे पास है। मैं इन चीज़ों को वसीला होने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस काम में 70,011 रुपये लगेंगे, ना 1 रुपया कम और ना 1 रुपया ज़्यादा। ये सुनते ही बब्बी और रफ़ीक हैरत अंगेज़ नज़रों से शाकर की तरफ देखने लगे। इतने में बब्बी ने कहा, शाकर बाबा, 70,000? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हैं। शाकर बाबा, मेरा दोस्त इतने पैसे कैसे दे सकता है? ये गरीब आदमी है। इस घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में इतने पैसे पहलवान कहाँ से देगा? आप थोड़ा ख्याल करें बाबा। ये सुनते ही शाकर ने कहा, जो काम मैंने करना है इसके लिए ये बहुत कम पैसे हैं, क्योंकि इस काम के लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और काफ़ी सारे अमल करने हैं, जिसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि सिर्फ पैसों से ही मिलती हैं। और कौन कहता है तुम्हारा दोस्त गरीब है? ये इतना बड़ा मैदान है, इसकी मलकियत है। अगर इसमें से थोड़ी जगह भी ये बेच डाले तो कई लाख रुपए तुम्हारे दोस्त को बाआसानी मिल जाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब मैं इस जगह से
इन शैतानी चीज़ों को भगा दूंगा। अब आप लोग सोच कर मुझे बता देना। इस दौरान जो प्लम्बर सेंट्री का काम कर रहा था वो भी कुछ देर से शाकर बाबा की बातें सुन रहा था। उसने शाकर बाबा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे बाबा मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, और मैं ये भी जानता हूँ मेरा आप लोगों के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है इससे मुझे लगता है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है जो सच्चे आमल होते हैं उनको पैसों की कोई लालच नहीं होती और वो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है तो बंदा फिर अपनी खुशी से जो कोई भी कुछ देना चाहे तो वो दे देता है। एक दो बंदों को तो मैंने खुद भी ये काम फी सबीलिल्लाह करते हुए देखा है। आपसे गुजारिश है कि आप भी इनका ख्याल करें। प्लम्बर की यह बात सुनते शाकर आग बगोला होकर बोला, अच्छा तो फिर तू ही इनका काम कर दे। जाकर अपने पल्ले से एक सफ़ेद जवान बकरा लेकर आ और साथ में एक चटांग ज़ाफ़रान लेकर आ। इसके बाद मैं तुझे बताता हूँ और क्या क्या चाहिए, और जब सारी चीज़ें तेरे पास आ जाएं तो मैं तुझे फ्री में अमल बता दूँगा, वो तू कर लेना। बात करता है फ्री कर दूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये कहने के बाद शाकर ने अपना मुंह ना में हिलाया और गुस्से से रफ़ीक के घर से जाने लगा। तो रफ़ीक ने शाकर का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुकिए रुकिए बाबा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये बच्चा है, इसे कुछ पता नहीं है, आप खुदारा इसे माफ़ कर दें। ये कहने के बाद रफ़ीक ने प्लम्बर से कहा, अरे तुम क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो? जाओ तुम सेंट्री का काम मुकम्मल करो जो तुम यहाँ करने आए हो। ये सुनते ही प्लम्बर ने शाकर की तरफ मायूसी अंदाज में देखते हुए ना में सर हिलाया और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इतने में रफ़ीक ने शाकर से दोबारा माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबा मैं आपको 70,011 रुपये दे दूंगा, लेकिन ये जगह मैं जिसको भी बेचूंगा वो यहाँ लगे इन पुराने दरख्तों को काट डालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम ने मरते वक्त मुझे नसीहत की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इन दरख्तों को मत काटना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था मैं नहीं जानता, पर मुझे इन दरख्तों के कटने से डर लगता है। ये सुनकर शाकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर रफ़ीक की तरफ देखते हुए बोला, बस इतनी सी बात? अगर ऐसा है तो मैं अमल करने के बाद अपने हाथों से इन दरख्तों को काट दूंगा और कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे वालिद मरहूम ने किसी हल्के अमल से इन चीज़ों को भगाने का कहा होगा, वो इन्हें भगाने में नाकाम हो गया होगा, इसीलिए वो इन चीज़ों की पनाहगाह को ख़त्म करने से कासर होकर पीछे हट गया होगा और एक सादा सा अमल करके इन चीज़ों को कुछ वक्त के लिए धीमा कर गया और अपनी जान छुड़ाकर भाग गया होगा, लेकिन अब उस अमल का असर ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से वो चीज़ें अब दोबारा से तुम लोगों को नज़र आने लगी हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों को और इनकी पनाहगाह को तुम्हारे सामने नेस्तो नाबूद कर दूंगा, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मुकम्मल करता हूँ। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, तो ठीक है बाबा, मैं आपको कल ही पैसे दे दूंगा और आप अमल करके इन दरख्तों को काट देना और इन चीज़ों से हमारी जान छुड़ा देना। ये सुनकर शाकर ने कहा, तो अब ये तय हो गया, कल का दिन इन शैतानी चीज़ों और इनकी पनाहगाह का आखिरी दिन साबित होगा। ये कहते हुए शाकर ने एक बार फिर से सारे दरख्तों की तरफ घूर कर देखा और वहाँ से चला गया। इतने में बब्बी ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, पहलवान जी, ये आपने क्या किया? अब कल तक 70,000 कहाँ से लेकर आएंगे? रफ़ीक ने बब्बी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,